السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مردے کی تدفین کرنے کے بعد قبرستان میں اذان دینا کیسا ہے۔ جیسے کہ مردے کو دفن کرنے جاتے ہیں اور دفن کرنے کے بعد اذان دی جاتی ہے، کچھ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اور اس طرح کے معاملات کرنا اور اذان دینا خصوصاً، تو اس کی کیا حقیقت ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ثابت ہے، تو کیا معاملات ہے، چلیے علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے، اور فرقہ واریت سے باہر نکل کے آپ اس چیز کو مد نظر رکھیے گا اور سمجھیے گا کہ فرقہ واریت سے باہر نکل کے سب چیزوں کو دیکھیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو آپ کو چیز بتائی جائے اس کو آپ ریسرچ بھی کریں، چیک آؤٹ بھی کریں خود سے۔ تو چلتے ہیں مدنی چینل کے موقع کی طرف، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ دعوت اسلامی والے مسلمانوں کی قبر پر کھڑے ہو کر اذان کس کو سناتے ہیں اور کہاں سے ثابت ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ پوچھتے بخاری شریف میں کہاں لکھا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ صرف بخاری شریف ہی کی بات مانو؟ کون سی حدیث میں، قرآن کی کون سی آیت میں؟ بخاری تو تھی نہیں، نہ سرکار کے دور میں تھی، نہ صحابہ کے دور میں تھی۔ بخاری شریف تو بہت بعد میں آئی ہے۔ اگرچہ بخاری شریف کے دلائل مضبوط ہوتے ہیں، لیکن صرف بخاری ماننا تو بخاری کے علاوہ کچھ ہے کہ نہیں؟ بخاری شریف میں کہاں لکھا ہے کہ اردو میں بات کرو؟ یہ بس گھمانے والی بات ہے، وہ بخاری میں کہاں لکھا ہے؟ حالانکہ یہ خود ایسی بے شمار باتوں پر عمل کر رہا ہوتا ہے کہ جس کا تعلق بخاری شریف سے نہیں ہوتا۔ امام بخاری شافعی تھے، خود حنفی ہوگا معترض، تو حنفی خود حنفی ہے اور شافعی کی دلیلیں مانگ رہا ہے، اگرچہ درست ہے، لیکن صرف بخاری پر اصرار کر رہا ہے۔ اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پتہ نہیں ہے تو سن لے کہ یہ شافعی تھے، اور بعض اوقات ایسا شخص نہ خود شافعی کو مانتا ہے، نہ حنفی کو مانتا ہے، نہ حنبلی کو مانتا ہے، نہ مالکی کو مانتا ہے، یہ کوئی اور ہی مخلوق ہوتا ہے۔ بخاری سے دکھاؤ۔ خالی بخاری کی دلیل نہیں مانگنی چاہیے، نہ قرآن و حدیث کی دلیل ٹھیک ہے مانگے، اور قرآن و حدیث کے بعد بھی تو کچھ ہے نا، قیاس بھی تو ہے نا، بہت سارے مطلب احکامات ہیں کہ جو اجماع امت ہے، اور قرآن و حدیث سے جو بات نہ ٹکرائے وہ جائز ہے۔ ورنہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں، 3 عیدیں مناتے ہو نا، 2 عیدیں ثابت کر دو، بخاری نہیں کسی ضعیف حدیث سے ثابت کر دے کوئی۔ 3 عیدیں، عید باسی عید، تیر باسی عید، تمہاری عید باسی ہوتی ہوگی، میری عید تو تازہ ہے، باسی عید ثابت کرو، تیر باسی عید ثابت کرو، دوسری عید ثابت کرو، تیسری عید ثابت کرو۔ یعنی عید میلاد النبی کس نے منائی؟ میں نے منائی۔ اچھا، دوسری اور تیسری عید کس نے منائی؟ تم نے منائی۔ اب تم مناؤ تو صحیح ہے، میں اگر عشق رسول میں ڈوب کر مناؤں تو مجھ سے ثبوت مانگا جائے کہ بخاری میں کہاں ہے؟ ایسا تو نہیں کرو، اپنی بریانی ثابت کرو بخاری سے، پراٹھے قورمے ثابت کرو، پیزے ثابت کرو، سب ہضم ہے۔ کھانا ثابت تو ہے نا، تو کیا کیا کھانا ثابت ہے؟ جو کی روٹی ثابت ہے، کھانا ثابت ہے، تو اب اس کے علاوہ جو بھی حلال و طیب اور شریعت نے جس کو منع نہیں کیا تو وہ کھانا جائز ہو گیا نا۔ تو اسی طرح شریعت نے اذان قبر کا منع نہیں کیا تو جائز ہو گیا۔ دوستو، آپ نے الیاس قادری صاحب کا موقف سن لیا، آپ کے سامنے موقف رکھنے کی کوشش کی میں نے الیاس قادری صاحب کی، اور انہوں نے کوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل پیش نہیں کیا، کیونکہ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سوال کیا تھا کسی نے کہ کوئی یعنی کہ قبر پہ اذان دینے کے کیا معاملہ تھے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کریں۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے معاملات نہیں پوچھنے چاہیے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ کسی کو کہا انہوں نے آپ لوگ بھی اس طرح کا عمل کر رہے ہوتے ہیں، عیدیں منا رہے ہوتے ہیں، 3 عیدیں ثابت کرو، انہوں نے اس طرح کے معاملات آپ کے سامنے رکھ دیے۔ آگے چلتے ہیں، حنیف قریشی صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ اذان علی القبر نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، اور نہ ہی ہمارا دعویٰ ہے کہ وہ سنت ہے کہ اس طرح صحابہ کے دور میں ہوا، بلکہ ایک مستحب عمل ہے۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ احادیث ہیں، جیسے ہم نے رات کو کہا تھا کہ بدعت وہ چیز ہے کہ جو نہ اصلاً ثابت ہو، یعنی وہ اس کا کوئی اصل سے اس کا تعلق نہیں۔ اب یہاں اصل حدیث رسول موجود ہے، اور وہ اصل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے یہ اذان سے بھاگتا ہے۔
दूसरी जगह ठीक है। हमारे यहाँ ऐसी मरवियात मौजूद हैं जिनमें ये मौजूद है कि मुस्तहब है कि आजान ऐसी जगह दिए जाए जहां वहशत है, यानी तंगी से, तकलीफ से, अजाब से, परेशानी से बचने के हाँ, लिए बिल्कुल, आपको याद आजान होगा। दी जाए तो उससे अमान मिलता है। बिल्कुल, कोविड के दिनों में जब अच्छा, लॉकडाउन था तो अब बाकायदा हम कह मसाजिद रहे में हैं अजानें कि हो ये रही। जो कब्र के अंदर पड़ा हुआ मुर्दा है, इससे हिसाब किताब होगा, और ये शदीद आजमाइश और इब्तिला का काम है। और ऐसे मौका पर कब्र के ऊपर तलकीन, वो सब हदीस से साबित है, तलकीन करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने खुद खड़े होकर कब्र पे तलकीन की, और तलकीन में क्या है, कुरान मजीद की आयात हैं, बिल्कुल। और उसका मकसद क्या है, तकरीबन इस पर इत्तेफाक है मुहद्दिसीन कराम का कि मकसद ये है कि वो मुर्दे को जवाब देने में आसानी होती है। अब उसी तनाजुर में आजान दी जाती है, और आजान भी पूरी नहीं दी जाती है हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, बल्कि ज्यादातर ये होता है अल्लाहु अकबर कलमा तौहीद, यानी अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो इसका मकसद ये है कि एक तो उस वहशत कब्र की दूर हो, मुर्दे की आसानी हो, और दूसरा ये कि उसको जो सवाल होने वाले हैं मन रब्बुका मा दीनुका मा कुन्ता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, उसके अंदर उसको आसानी हो। और ये चीज हमारे आनाफ जो फुक़हा हैं उन्होंने इसको पसंदीदा अमल करार दिया है, जिसकी वजह से हम इसको अच्छा समझते हैं। सो दोस्तों, आपने हनीफ कुरैशी साहब का भी मौक़िफ़ सुन लिया, उन्होंने भी आपके सामने मौक़िफ़ पेश किया कि जो है इसके अंदर कोई दलाइल मौजूद नहीं है, लेकिन हम जो है इसको अच्छा समझते हैं इस अमल को, और इससे जो है मुर्दे को आसानी रहती है जवाब देने में। कुछ आयतें भी पढ़ते हैं उसके हवाले से उसको आसानी रहती है मुर्दे को। तो ये आपके सामने मौक़िफ़ हनीफ कुरैशी साहब ने रखा, उनके पास भी कोई दलाइल नहीं थे कुरान और हदीस की रोशनी में कि इसको अज़ान देने का कोई हदीस से मिलता प्रूफ, कोई ऑथेंटिक प्रूफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आगे चलते हैं, मुफ्ती अकमल साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। एक उन्होंने फरमाया कि बाद दफन अजान देने की क्या शरई हैसियत है। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये तो साबित है कि आप कब्र पे खड़े हुए हैं, आपने जिक्र इलाही फरमाया है, आपने कुरान पढ़ा है, लेकिन अजान बाकायदा साबित नहीं, लेकिन इसकी मुमानअत भी नहीं है। ये जरूर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु महमूम थे, आपने फरमाया कि कान में अजान दो क्योंकि अजान गम को दूर कर देती है। एक रिवायत में सरकार ने फरमाया कि जब अजान दी जाती है तो शैतान दूर भाग जाता है जहां तक अजान की आवाज आती है। एक रिवायत में सरकार ने फरमाया कि जब आग लग जाए अजान दो, वो आग बुझ जाएगी। तो लिहाजा इसलिए उलमा ने इसको जायज करार दिया कि अजान कोई नमाज के लिए नहीं दे रहे, जैसे बच्चे के कान में अजान देते हैं तो किस लिए देते हैं, बरकत के लिए देते हैं। ऐसे ही अगर कब्र के पास खड़े होकर अजान दी जाए, एक तो शैतान दूर भाग जाएगा, दूसरा आग अगर फर्ज कर ले कब्र में है तो वो बुझ जाएगी, तीसरा वहशत और गम दूर होगा, और ये तीनों चीजें मुर्दे के लिए मुतवक्के हैं। इसलिए अगर कोई जिक्र की नीयत से वहां खड़े होकर अजान देता है, इसकी कोई मुमानअत नहीं, उसको कोई दीन का हिस्सा नहीं बना रहा, कोई उसको फर्ज वाजिब करार नहीं दे रहा, बल्कि फकत जिक्र इलाही की नीयत से अगर कोई अजान देता है तो शरन बिल्कुल जायज है। सो दोस्तों, आपने मुफ्ती अकमल साहब का भी मौक़िफ़ सुन लिया, उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलात में जायज़ है, क्योंकि उससे जो है कुछ कुरान और हदीस की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ हदीसें मिलती हैं कि कहीं आग लग जाए तो अज़ान दी जाए। इस तरह के मामलात आपके सामने रखने की कोशिश की है, और इन्होंने ये बात भी की है कि शैतान दूर भाग जाता है। तो मरने के बाद तो शैतान क्या करेगा, वो तो मर चुका है बंदा, उसके अमाल काट दिए गए दुनिया से, तो अब वो शैतान उसका क्या अमल दखल करेगा उसके अंदर। तो आपके सामने है कब्र के जाने के बाद जो है उसके सवालात शुरू हो जाएंगे कब्र में जाने के, तो उससे शैतान का लिंक ख़त्म हो गया। अब शैतान ने जो काम करना था दुनियावी एतबार से ही करना था, उसको जो है गुमराह करना था, घुमाना था, या जो भी करने थे मामला। बहरहाल आगे चलते हैं, आगे मुफ्ती अकमल साहब का अपने मौक़िफ़ सुन लिया, आगे चलते हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब क्या कहते हैं इस हवाले से, उनका मौक़िफ़ ले लेते हैं। मुर्दा को कब्र में दफना देने के बाद अजान का क्या हुक्म है, क्या अजान देनी चाहिए या नहीं? शादाब साहब कलकत्ता से। नहीं भाई, मुर्दे को कब्र में दफनाने के बाद अजान देने का कोई सबूत नहीं है। शरीयत ने हमें मैयत की जितनी भी रसूमात हैं, जितने भी तरीक़े हैं वो बता दिए हैं, बस उसी पर इक्तिफा किया जाएगा। ये लोग ये कहते हैं इसके नाजायज़ होने की क्या दलील है, तो भाई फिर नमाज भी पढ़ लें कब्र पे, फिर जो है और भी अमाल शुरू कर दें और यही कहेंगे इसके नाजायज़ होने की क्या दलील है। तो ये जो मखसूस अमल हमें शरीयत ने बताए हैं, तो इसमें जायज़ होने की दलील चाहिए होती है, नाजायज़ की दलील नहीं चाहिए होती।
हमें शरीयत ने बताया मैयत को गुस्ल दें, तो शरीयत ने बताया है तो हम गुस्ल देंगे, नहीं बताती शरीयत तो हम गुस्ल नहीं देते। बिल्कुल सही। शरीयत ने कहा कफन दें और ये इस तरह से कफन होना चाहिए, तो हमें शरीयत ने बताया तो हम उस तरह से कफन देंगे। शरीयत नहीं बताती तो हम उसी लिबास में दफन कर देते। तो जितना शरीयत ने बता दिया कफन दफन के मामलात में उसी को फॉलो किया जाएगा, अपनी बिल्कुल तरफ सही। से आप उसमें ज्यादती देखिए तो दोस्तों आपने मुफ्ती तारिक मुस्सा साहब का मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने कहा कि अपनी तरफ से आपने कुछ भी नहीं करना, कुरान और हदीस की रोशनी में जो दलाइल हमें मिले हैं दफनाने के हवाले से, कफन देने के हवाले से, वो मिले हैं जब भी हम उस पर अमल करते हैं, अगर नहीं मिलते तो हम वो अमल नहीं करते। ये आपके सामने मौक़िफ़ पेश कर दिया। आगे चलते हैं, एडवोकेट फैज़ सैयद साहब क्या कहते हैं इस हवाले से, उनका मौक़िफ़ लेते हैं। कब्र पर अजान देना, दुआएं, मखसूस दुआओं का तिलावत किया जाना, मखसूस सूरतों का या सूरह यासीन है या सूरह बकरा की तिलावत किया जाना, या जैसा तबारक लज़ी का सूरा पढ़कर उस दम करके पानी डाला जाना, या इन सूरों का पढ़कर पानी पर दम करके, फूलों पर दम करके, चादर पर दम करके, कपड़े पर दम करके, मिट्टी पर दम करके डालना, ये कोई भी काम सुन्नत से साबित नहीं है। इसी तरह मैयत को मरने के बाद खबर के अंदर या तदफीन के बाद खबर के अंदर कुरान का डालना, अहदनामों का डालना, किताबों का डालना, कुरानी आयतों का डालना, ये कोई भी चीज़ सुन्नत से साबित नहीं है। तो लिहाजा इस मामले में हम एहतियात करें तो ये ज़्यादा बेहतर है, वरना ये बिदत में शुमार होता है, इसलिए कि ये काम सहाबा से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से, ताबईन से साबित नहीं है। तो लिहाजा ये तमाम काम जो खास तौर से कुरान के ताल्लुक से लोग कब्रस्तानों में करते हैं, ये साबित नहीं, दुरुस्त नहीं है, लिहाजा इससे इज्तनाब करें, वरना ये बिदत में शुमार होता है। सो दोस्तों आपने एडवोकेट फैज़ सैयद साहब का मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने कहा कि ये जो मामलात हैं ये कुरान और हदीस से साबित नहीं है, तो ये अमल नहीं करने चाहिए आपको जो कुरान और हदीस की रोशनी में साबित ना हो। तो इस तरह का मौक़िफ़ आपके सामने एडवोकेट फैज़ सैयद साहब ने रख दिया है। आगे चलते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब क्या कहते हैं इस हवाले से, उनका मौक़िफ़ लेते हैं। कब्र पे अजान देना और तलकीन करना, ये तलकीन तो वादे करते हैं, ये क्या सिस्टम है? ये तलकीन वाला क्या चक्कर है? ये शिया भी करते हैं। शिया भी करते हैं, बरेलवी भी करते हैं। वो डॉक्टर तारुल कादरी साहब की एक वीडियो चढ़ी हुई है, पढ़ बेटा तनवीर, बेटा पढ़, तनवीर बेटा पढ़, पढ़ो मेरे बेटे तनवीर कुरैशी पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पढ़ो याद करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहते पीछे हो जाओ, फरिश्ते आने वाले हैं अभी। यार को वीडियो लगाई हुई है किसी ने। एक तरफ ये खुद कहते हैं कि जब मुर्दे को दफना के जाते हैं, बुखारी में हदीस है, तो वो कदमों की चाप सुनता है, उसके बाद फरिश्ते आते हैं। कब्र पे जब तक एक बंदा भी मौजूद है, फरिश्ते तो नहीं आते उस वक्त तक। तमाम अब हज चले जाएंगे। अब हदीस पाक है कि जब आप वापस हटेंगे तो आपके कदमों की आहट तनवीर कुरैशी अब सुनेंगे। जब आप जाएंगे पीछे तो तनवीर शहीद आपके कदमों की आहट सुनेंगे और उसी लम्हे आपके हटते ही मलाइका पहुंच जाएंगे। ये हमें बताते हैं खुद। तारुल कादरी साहब के वहाँ खड़े हुए फरिश्ते कैसे आ गए? वैसे इस किस्म के जो हदीस हैं, ये बड़ी अजीब सी हदीस नहीं है। नहीं, कोई अब एक बंदा क़यामत तक वहाँ खड़ा है, उसको अज़ाब भी और नहीं ये कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, मैंने बार बार कह रहा हूँ ये कहते हैं, लेकिन आप कहना हदीस तो है ना। वो हदीस शरीफ में इस तरह नहीं है। हदीस शरीफ में ये है कि जब मुर्दे को दफना के जाते हैं लोग, वो जाने वालों के कदमों की आहट सुनता है। जी वो तो है, ठीक है ना जी। अब ज़ाहिर सारे तो कब्र पे नहीं खड़े रहेंगे, कुछ शायद थोड़ी देर के लिए खड़े रहेंगे। कितनी देर को खड़ा रहेगा? क़यामत तक तो खड़ा ही नहीं रह सकता। सही बुखारी में आता है, वो मुअल्लक रिवायत है कि हजरत हसन की बीवी ने, हजरत हसन की बेटे की बीवी ने 1 साल तक खैमा लगाई रखा था। ठीक है ना जी। वो पेश करते हैं, हालांकि उसके आगे अल्फाज मुफ्ती अहमद नईमी साहब नहीं लिखते हैं कि किसी ने फिर आवाज दी कि लब गया जिन्होंने लबन आए सोए थे, जिसको ढूंढने आई थी मिल गया, मायूसी होके जा रही है ना, जो कब्र में गया वो बाहर तो नहीं निकलता।
ये अगले अल्फाज ही नकल किए और वो कहते हैं नहीं कब्र पे मखैमा लगाया था लिहाजा मज़ार बनाना साबित हो गया। शुरुल्ला मार देने। आप कोई भी बात इनकी निकाले ना कभी पूरी सही नहीं निकलती। अच्छा वो अजान वाला मसला तलकीन का जो मसला है ना, सही मुस्लिम में हदीस है अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस की हजरत अमर इब्न आस की मौत का वक्त जब करीब आया, बड़ी लंबी हदीस है, मैंने करबला वाले रिसर्च पेपर पे भी लिखी है। करबला पास है ना टोर पे हो। अच्छा उसमें वो आता है कि हजरत अमर बिन आस कहते हैं जब मैं मर जाऊं मेरी कब्र पे इतनी देर बैठे रहना जितनी देर एक ऊंट को कुर्बान करके उसका गोश्त तकसीम किया जाता है, यानी 2-2.5 घंटे, ताकि मैं अपनी कब्र से मानूस हूं और मुझे मुनकर नकीर के सवालात में जवाब देने में इस्तकामत नसीब हो तुम्हारे कब्र पे बैठने की वजह से। कब्र पे अगर आप बैठते हैं किसी शख्स के लिए कब्र के ऊपर बैठ के नहीं, साइड पे बैठ के, मरने के बाद दफनाने के बाद बैठे रहे वहां पे 2-2.5 घंटे दुआएं करें, हम तो कायल है, सारे कायल है इसके। इवन सुना भी दाऊद में हदीस है कि जब अपने भाई को दफना चुको तो अपने भाई के लिए कब्र के सवालों की इस्तकामत की दुआ करो। तो कब्र पे जब आप किसी को दफनाएं बैठे सुकून से उसके लिए दुआ भी करें। अली भाई ये जो है कि मतलब 2 घंटे लगा लो, 3 घंटे लगा लो, 4 घंटे लगा लो, ये मतलब अल्लाह के अदल से लॉजिक से ये टकराती नहीं चीजें आपको लगती? नहीं, इसमें कहाँ ये लिखा हुआ है कि जरूर मगफरत हो जाएगी, ये तो लिखे नहीं हुआ। नहीं लेकिन मकसद क्या है ये, यानी मकसद देखिए अल्लाह ने साफ करना है या ये देखना है कि भी कितने बंदे आ रहे हैं? नहीं, अल्लाह ताला की देखिए, अल्लाह ताला दुआओं की भी कदर करता है, वरना तो दुआ का कॉन्सेप्ट ही दुनिया से खत्म हो जाएगा। ये नहीं है नाउज़ु बिल्लाह के कोई शख्स बागी मुजरिम है और वो लाखों लोग करोड़ों लोगों का कातिल है और वो जनाब 100 कुरान पढ़वा ले तो बख्शा जाएगा, इस तरह नहीं होगा, ये रूल नहीं है। लेकिन दुआ करने का फायदा तो होता है ना। सही मुस्लिम में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़ी लंबी हदीस है, उसके एंड पे आता है कि ये कब्रें एक मतलब वो एक औरत थी मस्जिद नबी की सफाई करती थी, मर गई, लोगों ने दफना दिया, रातों रात हुजूर को खबर नहीं दी। आप फरमाया वो औरत किधर गई है? कहा जी फौत होगी, आपके आराम के खलल की वजह से नहीं बताया। अब साहबा का तो चूंकि हाज़िर नाज़िर का कब्र में सरकार के आने का अकीदा नहीं था, उन बेचारों को तो नहीं पता थी ये बातें। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भी मुझे तो नहीं बताया, मुझे बताओ उसकी कब्र किधर है। साहबा ने कब्र बताई, वहां जाके आपने कब्र पे दोबारा जनाजा पढ़ा और फिर फरमाया कि मेरी नमाज जनाजा पढ़ने की बरकत से इन कब्रों को जो तारीख में डूबी हुई थी, तारीकी में नूर से भर दिया गया। बाज़ औक़ात किसी नेक बंदे की दुआ अल्लाह ताला सिफारिश के तौर पे कबूल कर लेता है, फैसला अल्लाह नहीं करना है, दोस्त कोई नहीं है। ये जो कीदा ना कि दोस्त नहीं भाई। सो दोस्तों आपने इंजीनियर साहब का भी मौक़िफ़ सुन लिया। आपके सामने सारे उलमा कराम का मौक़िफ़ पेश करने का मकसद ये होता है आपके दिमाग में, माइंड में नॉलेज पहुँचे और आपके सामने आपने देख लिया कुरान और हदीस की रोशनी में कब्र के ऊपर जाके अजान देने की कोई ऑथेंटिक हदीस या कुरान की आयत से हमें नहीं मिलता है कि हम जाके वहाँ पे अजान दें कब्र के ऊपर। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जैसे ही वीडियो अपडेट हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदके जारी में शामिल हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू सबका तो हो रहनुमा।